Hi everyone, I hope your preparations for the November JAB examinations are going well. So, as you know, there is a subject Indian economy and financial system in your JAB syllabus, and of course, we have to cover the syllabus of IE and FS. So, I will be covering certain important topics from the Indian economy portion of this particular subject. My name is Manish Mishra, and I will be taking the Indian economy lectures from IE and FS subject for the JAB examination for the month of November 2025. So today, in today's session, we are going to talk about India's economy before independence, right? Or you can also call it India's economy on the eve of independence. Okay, we will be specifically talking about the agriculture and industries, and in the next session, we will be talking further about this particular topic. So, when we talk about Indian economy before independence, first of all, you need to understand that you need to just have an overview of this particular topic. You just have an overview because there are very less chances कि यहाँ से direct question बने. But of course, to solve the questions from other topics, my dear friends, you need to understand this particular topic. ठीक है, तभी आप बाकी टॉपिक्स को समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे why there are different sectors in the economy, why there was a need of economic reforms in the year 1991, why was there a need of green revolution in 1960s. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तभी चमकेगी जब आपका इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस या इंडियन इकोनॉमी का पूरा ओवरव्यू आपके पास होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट Indian economy before the British rule, so India's economy was completely independent. India's economy was completely independent before British rule, right? During those times, agriculture was the main source of livelihood for the entire country. ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के इन्वेजन से पहले, agriculture was the main source of livelihood. However, the Indian economy was characterized by various kinds of manufacturing activities as well before the Britishers came. बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हमारे देश में होती थी, एंड आउट ऑफ ऑल दोज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज द मेजर वन वाज द handicraft. The major one was the handicraft sector. The handicraft sector was booming in the country, right? Specifically in the silk sector. Now, this was because of the finest quality of Indian product, and of course the high standards of the craftsmanship. Okay, along with that, there was a good industry of metals and precious stones as well. But majorly the manufacturing activity was was around the handicrafts. ठीक है, जो क्राफ्टमैनशिप थी इंडिया की उसकी बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड थी, एंड द प्रोडक्ट वाज आल्सो द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स वर आल्सो वेरी फाइन. ठीक है, बट उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स. ठीक है, अब हमारे देश में कौन आ गए? ब्रिटिशर्स आ गए. नाउ ब्रिटिशर्स हैव द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. मतलब उनका जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ब्रिटिश जो है, जो यूके है, वहां की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको फुलफिल किया जा सके. और उनका ओवरऑल जो एक्सपेंशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कैसे भी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा मिले. ठीक है, एंड इन पॉलिसीज की वजह से जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कुछ इस तरीके की पॉलिसीज क्रिएट करी जिससे कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आता है इंडिया की इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स के आने के बाद. और वो फंडामेंटल चेंज ये था दैट इंडियाज economy was completely transformed into just a supplier of raw materials and consumer of finished इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन. उन्होंने क्या करा? इंडिया को एक मार्केट बना दिया. किसका? फिनिश्ड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का. और इंडिया से रॉ मटेरियल्स वहां पे लेके जाते थे बहुत सस्ते दामों पे. ठीक है, बहुत सस्ते दामों पे यहां से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल्स. ठीक है, जिसका बहुत कम फायदा होता था इंडियन प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को स्पेसिफिकली. और उसके बदले में यहां पे सारा का सारा जो उनका माल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो डंप होता था. So India was completely transformed into a supplier of raw materials and consumer of the final products from the British. Right? तो ये मेजर हुआ. इसके बाद if we talk specifically about the agriculture, so
ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी देखो, बिफोर ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंडियाज इकोनॉमी वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ऑल्सो आफ्टर द ब्रिटिशर्स इंडियाज इकोनॉमी वॉज फंडामेंटली एग्रेरियन. It was fundamentally agrarian because about 85% of the country's population, 85% of the country's population lived mostly in villages and derived their livelihood directly or indirectly from the agriculture sector. ठीक है. अब किसी देश के 85% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड ले रही है, सो व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज दैट? ऑफ कोर्स इट विल बी कॉल्ड एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. अरे हाँ कि ना, ठीक है ना. तो एग्रेरियन इकोनॉमी था. लेकिन अब देखो 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन यानी कि फार मोर देन मेजॉरिटी. ठीक है, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे. बट डिस्पाइट दिस फैक्ट, Indian agriculture was completely stagnated during the British rule. ठीक है. Now there were a lot of reasons for this particular stagnation, out of which the major reason was the various systems of land settlement, out of which the most important one is the zamindari system. I hope you know the system of zamindari. So in zamindari system what used to happen was कि फार्मर एक हो गया, जो फार्मर है जो कि काम कर रहा है, जो शेयर क्रॉपर, जो क्रॉपर्स है, ठीक है, वो अपने लैंड पे काम कर रहे हैं. अपना लैंड तो था भी नहीं बेसिकली. फिर बीच में थे जमींदार्स, ठीक है, और उसके बाद थे ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जमींदारों को बोल दिया कि भैया हमें इतना फिक्स्ड पैसा चाहिए, ठीक है, इतना फिक्स्ड प्रोड्यूस चाहिए, आपको हमें देना पड़ेगा. अब जमींदार ने क्या करा, उन्होंने फार्मर्स का केवल एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दिया. जो क्रॉपर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दिया. दे यूज्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर्स. ठीक है, जो भी लैंड पे वो काम करते थे उससे रेंट लेते रहते थे और वो उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था. अब यहाँ पे जमींदार जो थे उनकी भी मजबूरी थी कि अगर ब्रिटिशर्स ने उन पे कंडीशन लगा रखी थी कि अगर आप हमें दिस मच अमाउंट दो, जो भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट नहीं देंगे तो आपकी जमींदारी अबॉलिश कर दी जाएगी, आपसे आपका जो लैंड है वो छीन लिया जाएगा. तो लैंड छिन जाने के डर से जो जमींदार थे वो किसको एक्सप्लॉइट करते थे, फार्मर्स को, यानी कि जो क्रॉपर्स हुआ करते थे. तो इससे क्या हुआ, और ना ही ब्रिटिशर्स और ना ही जमींदार किसी ने भी फार्मर्स के या जो क्रॉपर्स थे जो उगाने का काम करते थे या लेबरर्स थे उनके फेवर में, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कभी कुछ नहीं किया. तो इसीलिए बहुत सारे हमने फार्मर रेवोल्यूशंस देखे हैं. ठीक है, लॉट ऑफ फार्मर रेवोल्यूशंस had happened ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस. बहुत सारे फार्मर्स रेवोल्यूशन भी हुए और उसका बहुत बड़ा रीजन यही था कि जो फार्मर्स थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. भाई मैं उगा रहा हूं और सारा उठा के जमींदारों को दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा. दिस वाज द मेजर रीजन ऑफ stagnation of India's agriculture during the British period. There were other reasons like the levels of technology. अब टेक्नोलॉजी की बात तो यार देखो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि जिस देश में खाने का पैसा नहीं था उस समय लोगों के पास इतनी ज्यादा गरीबी थी, तो टेक्नोलॉजी तो मतलब ही नहीं है. देयर वर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, एंड देयर वाज नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, एंड दीज वर आल्सो द रीजंस दैट द इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है. However, इसके बाद there are certain evidences of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture, like cotton. ठीक, अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कैश क्रॉप्स की तो उन्होंने फार्मर्स को मजबूर किया कि भैया कैश क्रॉप्स उगाओ. उससे क्या हुआ कि ऑफ कोर्स जो यील्ड था वो हाई था, लेकिन तब भी फार्मर्स जो थे उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला. पहली चीज, जो गरीब फार्मर्स थे, जो कि मेजरली वही थे, जो पुअर फार्मर्स थे, दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू ग्रो द कैश क्रॉप्स, क्योंकि कैश क्रॉप्स को उगाना महंगा होता था. दे डिडंट हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट. ओके. इसके अलावा जो थोड़े बहुत स्टेबल फार्मर्स भी थे, अमीर तो मैं नहीं बोलूंगा, जो कि अपना खा कमा लेते थे, जो वो फार्मर्स थे उनको भी प्रॉब्लम होती थी. क्यों होती थी? क्योंकि अगेन भाई कैश क्रॉप से यील्ड तो बढ़ गई, लेकिन अंग्रेजों की भी जो लालच है वो भी तो बढ़ गया, जो जमींदार थे उनका भी तो लालच बढ़ गया. ठीक है, तो ओवरऑल यील्ड में तो इंप्रूवमेंट आया कैश क्रॉप से, लेकिन वो जो फार्मर्स की स्थिति थी उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया. ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सिंपल आंसर होगा इसका, बिल्कुल सिंपल आंसर होगा
कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर वाज कंप्लीटली स्टैग्नेटेड बिकॉज ऑफ दी जमींदारी सिस्टम। जो भी पैसा होता था वो जमींदारों को चला जाता था। अलॉन्ग विद दिस देयर वर लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ सीड्स वर आल्सो नॉट गुड, ठीक है, द राइट अमाउंट ऑफ और द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनपुट्स वर not available to the farmers with the farmers because of the poverty. They didn't have the enough resources to buy the required amount of inputs for efficient yield, for large yield of their crops. ठीक है, अब हम आते हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, एग्रीकल्चर आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम बात करें अगर इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज की हो गई थी जी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेजों ने सबसे पहले आते इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम किया। क्यों किया? दो रीजंस थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में। बिकॉज दे वांट दैट इंडिया मस्ट बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे और ब्रिटिश भेजे, वो भी बहुत सस्ते दामों पे, और जो भी ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट होगा वो हम इंडिया में बेचेंगे, इंडिया को एक मार्केट बना देंगे। बिकॉज पॉपुलेशन बहुत थी, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत थी, एक बहुत बड़ी मार्केट थी। और आज भी हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो जोर से चिल्ला भी दें तो दो चार कंट्रियां, 10-20 कंट्रियां जो ऐसी हैं जो कि बहरी हो जाएंगी अगर हम 150 करोड़ एक साथ चिल्ला भी दें तो। ठीक है, तो दूसरा भाई, इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू अ मार्केट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज देयर। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, सो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ आया तो मॉडर्न इंडस्ट्री ने थोड़ा सा कदम रखना शुरू करा इंडिया में, बट वो भी थोड़ा ही था, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल था। इन टर्म्स ऑफ इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर, वो बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज में इंडस्ट्रीज थी हमारे देश में। ठीक है, इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। द इनिशियली द डेवलपमेंट, the industrial development was confined to the setting up of cotton and jute textiles. The cotton textiles were mainly dominated by Indians in the western parts of the country, Maharashtra and Gujarat. गुजरात में कॉटन मिल्स बहुत है, सूरत में आपने सुना होगा। तो ये उसी समय से चली आ रही है, द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। एंड द जूट मिल्स, जो जूट मिल्स थी, दीज वर डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स, वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। बंगाल में पहली जूट फैक्ट्री लगी थी, और जो कॉटन फैक्ट्री थी, कॉटन मिल था, वो सबसे पहले कहां पे लगा था? सूरत में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ने भी आना शुरू करा। टाटा जैसे लोग, जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने बीड़ा उठाया कि नहीं, हमें तो भाई इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है इंडिया में। एंड देयर बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। ठीक है, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया में कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री होना क्यों जरूरी था? क्योंकि देखो भाई, अगर मेरे को कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू क्रिएट, आई हैव टू ओपन, आई हैव टू एस्टैब्लिश अ कॉटन मिल, फॉर दैट आई नीड मशीनरी। अब मशीनरी कहां से आएगी? मशीनरी के लिए भी तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री होना चाहिए था हमारे देश में, फिर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अगेन कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी नहीं थी ताकि फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो। अब मेरे को अगर कॉटन टेक्सटाइल मिल खोलनी है तो मैं तो मशीन बाहर से इंपोर्ट कराऊंगा, उसी में मैं बर्बाद हो जाऊंगा, राइट? उसी में बर्बादी है पूरी। अरे है कि नहीं? तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री ना होना एक बहुत बड़ा रीजन था, एक बहुत बड़ा बैरियर था टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। ठीक है, पब्लिक सेक्टर तो था ही नहीं, क्योंकि भाई व्हाई वुड ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री? बिकॉज उनका तो इंटरेस्ट ये था कि हमें तो बस यहाँ से रॉ मटेरियल खींचना है और अपना फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे डंप करना है। The public sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports, and some other departmental undertakings. So this was the status of industries during the British rule in the country. Okay. I hope guys the concepts, the overview of Indian agriculture and Indian industry during the British period is clear. So to watch such kind of sessions, do subscribe to the channel. I will be coming up with such short sessions which will help you in clearing the November JAB examination. Thank you very much for watching. Goodbye, take care, and God bless.